लॉस एंजल्स में होने वाली तकरीब कोही गोट ख़वातीन के अमराज के लिए 17 साल से काम कर रहा है और बेकरार खिदमत अंजाम दी हैं। फरीद जाफरी और उनके ख़ानदान जो कि मारूफ बंदूखां रेस्टोरेंट भी ओन करते हैं और जनाब डॉक्टर एहसान रशीद ने इसको ऑर्गेनाइज करने में बेइंतहा मेहनत की और कामयाबी से हमकिनार किया। कम्युनिटी ने भरपूर साथ दिया और सपोर्ट किया। इस मौके पे एक स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया। याद रहे इस तकरीब में तकरीबन $4 लाख का चंदा भी जमा किया गया। इस मौके पे बंदू खान ने लजीज तरीन खानों से तवादे की। वकार अली खान, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया। These mic to Asim Ali Khan say a few words. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening. Dr. Ehsan Rashid, Dr. Shesha, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends, families. Thank you very much for being here, for inviting me and my family here. I'm really honored and pleased to be here. Rather, it's a privilege to be here. It's a privilege and honor for the reason we are gathered here for a cause that is purely humanitarian. Ladies and gentlemen, there are diaspora communities in this country from almost all over the world, from over 200 countries. Very few diaspora communities care about their motherland and home countries so much as you do. And all of you deserve truly appreciation and commendation and really my personal regards and my personal respects for what you do. This is not the only fundraiser that I have attended during my tenure here, a lot of them, and I see your generosity, your philanthropy, continuously, unending, just for purely humanitarian reasons, for the love of your country you have come from. Despite the fact that many of you are here for over decades, I think many of you are here for over 5 decades. So this is a test of the love and your attachment to your motherland. By virtue of my profession, I get to interact with many communities, many consulates here. There are over 100 plus here. And I talk to them about how their diasporas are doing it and how strong their links have been made with their country, where they have come from. And you are very unique out of them. And for the reasons I will narrate, I hope I have some time, a few minutes to this is an opportunity, as I said, this is a privilege to talk to you about. Let me relevant to the even today, I'll just narrate a few facts about Pakistan's health sector in which all of you are contributing. Your presence today demonstrates and testifies to the fact that you're all contributing to Pakistan's socio-economic developments. Ladies and gentlemen, when somebody migrates to another country and decides to make another country their homeland, then there's no compulsion remaining on us, on that person, to keep ties back home, to keep ties, to pay back, to give back. You can also give back, and you do give back to this country where you have made this your second home. Here you see Madam Dai, girl president in her first pregnancy, she started passing bleed after delivery days. A life at the cost of another life is how the nation has failed countless women. And those who survive are forced to live a miserable life. No one understands the pain and anguish these women endure. Instead, people want to get rid of them as if they have become a burden. And so, Kohi Goat greatest contribution emerged. Kohi Goat Women's Hospital, an unwavering vision to safeguard every woman's life, never willing to sacrifice even one. We started this in 2004. Because of the help from the friends, it grows very fast. Kohi Goat Women's Hospital emerged in 1999 as a beacon of light in the darkness, gradually developing into a fully functional facility by 2004. Since then, the doors of hospital have remained open 24/7,
providing the cure, care, and support to vulnerable women in our society, regardless of their caste, color, and financial status. We have now more than 250 bedded hospital where all kind of patients, women are treated. So this hospital is a free hospital. There is no cash counter. No questions asked. Any patient that comes in and says that they cannot afford the treatment is welcomed and treated equally at this facility without any discrimination or preference. मैंने अपने घर वालों को बताया मुझे जैसे फस्तुला की बीमारी हो गई है, तो उन्होंने कहा कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी शैतानी बीमारी पैदा हो गई है। तो मुझे ये नहीं पता था फस्तुला होता क्या है। मैं जब गुर्दे की तकलीफ समझ के डॉक्टर शेरशाह के पास गई, इसमें इलाज करवाया, मुख्तलिफ तरीके के ऑपरेशन करवाए, तकरीबन 12 से 13 ऑपरेशन हुए मेरे, और उसके बाद मैंने जो है फस्तुला वगैरह रिपेयर किया। What began with a few numbers of beds is now a full-fledged facility that caters to fistula patients from all over the country. Kohinoor Women's Hospital operates in 9 regional centers of Pakistan, in which over 1,500 fistula patients are recorded every year. The vision was that we will start with the fistula, then we will have a big maternity home, and with the big maternity home we will have a school of midwifery. So we will train midwives from the villages of Pakistan to show the government that it is possible. And we will repair fistula and we will train young surgeons to be trained to repair fistula. So that's what happens. On a daily basis, around 800 patients are treated in OPD clinic at the hospital. Over the years, approximately 10,132 fistula patients have been treated at this facility. The ongoing mission is to expand further, aiming to significantly reduce the incidence of fistula. सीरियल देता रहता था, सबको वो हैरानगी हो गई कि पहली बार हम ये टेस्ट Just smashed it. I know you want my friend. अगर किसी के पास एनवेलप नहीं है इसको लिखना चाहते हैं तो प्लीज वॉलंटियर्स कैन प्रोवाइड एनवेलप्स। एक साथ पीछे बैठे उन्होंने हाथ रेस किया था, उनके पास एनवेलप नहीं है। मिल गया डॉक्टर जी सर यहाँ पे कुछ रेज हैंड हुए थे सेकंड लास्ट राउंड में। अच्छा, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, अभी मैं अब बात कीजिए। अगर किसी के पास एनवेलप नहीं है इसको लिखना चाहते हैं तो प्लीज वॉलंटियर्स कैन प्रोवाइड एनवेलप्स। एक साथ पीछे बैठे उन्होंने हाथ रेस किया था, उनके पास एनवेलप नहीं है। मिल गया डॉक्टर जी सर यहाँ पे कुछ रेज हैंड हुए थे सेकंड लास्ट राउंड में। अच्छा, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, अभी मैं अब बात कीजिए। Here and we would like to have him amongst more of our functions that gives the credibility to the community. Dr. Shersha briefly spoke about the Kohinoor Women's Hospital with Mr. Khan, and I would like to give हम लोग 300-400 डिलीवरी कराते थे महीने की, इस वक्त हम 1000 से ज़्यादा डिलीवरी करा रहे हैं। तो अभी कुछ महीना पहले मैं अटलांटा में कोई भी मरीज आ जाता है हम उसको देखते हैं। गुर्बत की वजह से ऐसे मुतवस्सित तबके के लोग, मिडिल क्लास लोग, वो भी हमारे अस्पताल में आने लग गए हैं क्योंकि उनके पास 60-70 हज़ार रुपये नहीं है जो आके किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कर सकें। तो मैंने बोला कि कुछ साल पहले हम शीमा किरमानी को लेके आए थे और हमने कुछ फंड रेजिंग की थी। तो हमारी दोस्त हैं वहाँ पर शरीला, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको पाकिस्तान से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें बड़ा किराया खर्च होता है। हमारे अटलांटा में एक प्ले ग्रुप है, हम आपके लिए प्ले करेंगे। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इस प्ले ग्रुप का जिसमें ये सारे आर्टिस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने एक पैसा चार्ज नहीं किया है, हर वीकेंड पे हमारे साथ शहर व शहर जा रहे हैं। तो मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ। हमारे अस्पताल के लिए ना सिर्फ के वक्त निकाला है बल्कि अपने पर्स से पैसे भी निकाले हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये हमारा अस्पताल है और 2004 में
considerable impact. I am going to invite Mr. Anam to join me. Thank you, Sunil, for coming in the video. आप भी आए। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहम्मद इनामुल्लाह, कॉमनली नोन एज इनाम भाई, इनाम अंकल, एडवोकेट। चलिए जो है मैं चार्ट था, जब तक चार्ट साल है आपको ये बता दूं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि मुझे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर शेखा सैयद से। उन्होंने अस्पताल के बारे में बताया। मुझे उसी महीने कराची जाना हुआ, तकरीबन 2 महीने के बाद। तो मैंने अनअनाउंस विजिट किया अस्पताल के लिए, देखने के लिए वाकई ये काम हुआ है जो पेशेंट बता रहे हैं कि हुआ है। वहाँ पर चंद पेशेंट्स बैठे हुए थे, मैंने उनसे बातें की और मैं मुतमईन होने के बाद अंदर गया और मैंने कहा मुझे डॉक्टर शेखा सैयद से मिलना है। Do not thank Dr. Saab for coming to Los Angeles. He has been referred to me by a very good friend of mine, Zeba Wanik, many times, and she constantly calls me every year, please support this institution. And Dr. Asim, I don't know if he's involved with Sinha Clinic or not. Is he the same Dr. Asim? आप सिन्हा क्लिनिक के साथ इन्वॉल्व हैं जी? जी I wish I was. I am not even a physician. डॉक्टर आसिम ये जो आप ड्रामा देखेंगे ये इनाम भाई का लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, इनाम भाई मेरे दोस्त सीईओ हैं आगा खान हॉस्पिटल के, डॉक्टर फरहत अब्बास। जी I know him well. His daughter is married to Dr. Inam's son here. They live in Riverside, so I thought maybe. तो अगर आप मुझे वो समझना चाहें तो समझें। और इस ताल्लुक की वजह से अगर आप 1 साल के बजाय 2 साल का स्पॉन्सरशिप But डॉक्टर साहब आपको मैं जरा क्लियर करना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट के बारे में जो कह रहे थे ना, आई डोंट थिंक इट्स ऑल दैट ट्रूथ। जो लीडर जो था, अल्लाह उसकी जन्म मग़फ़िरत करे, मुशर्रफ साहब थे। मुशर्रफ साहब ने डॉक्टर नसीम अशरफ को बुलाया था 2004 में। हम 30 ट्रस्टी हैं, मैं इसका गवाह हूँ। हमने 11 मिलियन लोगों को लिटरेट किया और हमारा ORS प्रोग्राम था और बिल गेट ने हमें बिल गेट फाउंडेशन में $6 मिलियन दिए थे। We have done a lot of this work we are doing in all the villages in Pakistan 20 years ago. तो सारी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती, ये भी जो पॉलिटिशियन है ये भी बड़ा चैरिटी का काम करते हैं, लेकिन अल्लाह आपको अजर दे। आपका जो कोई गोट है मेरी फैक्ट्री के बिल्कुल बराबर है। मेरा गोट कांटो में प्लांट है। जी बिल्कुल। ये तो इंशाल्लाह अभी मैं आऊँगा, अभी मैं उनके साथ ड्रॉप से है, लेकिन आप भी देर इंशाल्लाह जनवरी आई कम विजिट माय स्टाफ। थैंक यू। अपनी उसूल क्या करते हैं? खालसा हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उस पिस्तौल में गोली थी नहीं, पटाखा था। ज़ारा इनामुल्लाह, इन्होंने पता नहीं कोई काम किया नहीं किया क्योंकि मेरी लीनियस में बुलवारों से And now the cast जिन्होंने परफॉर्म किया, निगत दाऊद as अम्मी खान, नूरुल ऐन खान as आप लोगों को पता है शहजाद, खलीद ख्वाजा as दानिश्वर, फरातूर as जन्नत, शाहिद अली as रमजान, and the director of the play, Dr. Farzana Barnul.
जो ये आप लेकर आए कोई गोट बहुत पुराना प्रोजेक्ट आपका माशाल्लाह और बड़ा अच्छा जा रहा है, तो आपकी क्या फीलिंग है एलए वाले ने जो आपसे कोऑपरेशन किया आज, जो सपोर्ट किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एलए में रहने वाले लोगों का जो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए और दिल खोल के उन्होंने हमारी मदद करने का वादा किया है और मुझसे अकेले भी बात की है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे ख्याल में लोगों के दिल में दर्द है, वो चाहते हैं कि औरतों की सेहत की हिफाजत की जाए, फिस्टुला का शिकार बनने वाली ख़वातीन लड़कियों का इलाज किया जाए और पाकिस्तान में माएँ मर रही हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके तवज्जुह से सबको बताना कि बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कोई खुसूसी मैसेज देना चाहेंगे आप? पूरे अमेरिका आपको वॉच कर रहा है, पूरा अमेरिका आपको देख रहा है सफीर पाकिस्तान के प्रोग्राम से। मैं लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में क्या किया जाए। मैं कहता हूँ दो ही काम करें। एक काम ये करें कि लड़कियों की तालीम पे पैसा खर्च करें। जब लड़कियों की तालीम होती है तो पूरे ख़ानदान को लेके जाती है। और दूसरी बात ये कि जो माओं की अमवात होती है उससे बचा जाए, माओं को मरने से बचाया जाए। यंग लड़कियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ मर जाती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है और उसमें हर उस कॉज की मदद करें जिसमें लड़कियों की हिफाजत की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डूइंग द ग्रेट जॉब। थैंक यू। एंड यू डिजर्व द वेरी बिग इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। Nobel Prize soon inshallah. थैंक यू।